chemistry. Yeah, तो मैं कहाँ थी? Yes. Yeah. What is crystal lattice? तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जिसे हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं. तो what is crystal lattice? Answer is a regular three-dimensional arrangement of the constituent particles, atoms or ions or molecule of a crystalline solid in three-dimensional space is called crystal lattice. और स्पेस लैटिस मतलब ऐसा कोई पार्टिकल हो जो थ्री डायमेंशनल में उसका अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन होता है, वो होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस. और स्पेस लैटिस कह सकते हैं उसे, दोनों नाम उसका ही है. तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड in three-dimensional space is called as the crystal lattice. Okay. What is unit cell? What is unit cell? Next question. What is unit cell? Unit cell, it is the smallest basic unit of crystal lattice which when repeated over and over again in three dimensions produces the entire crystal. फिर से समझते हैं. It is the smallest basic unit of crystal lattice which when repeated over and over again in three dimensions produces the entire crystal. मतलब इसे बोला गया है कि जो ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टल लैटिस का, जो कि रिपीट करता है ओवर और ओवर अगेन इन थ्री डायमेंशन प्रोड्यूसेस द एंटायर क्रिस्टल. जो एंटायर क्रिस्टल है उसमें वो ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूस करता है, वो उसे कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड. बिल्ली गई बिल्ली. When repeated over and over again in three dimensions produces the entire crystal. Okay, that's called the then what is, okay, इसको फिर से पढ़ते हैं. What is unit cell? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट का, जिसपे से मैं वेरी शॉर्ट आंसर में से क्वेश्चन देख रही हूँ. It is the smallest basic unit of crystal lattice which is repeated over and over again produces again three dimension produces the entire crystal. Next question. What is polymorphism? What is polymorphism? Anyone? Comment down. What is polymorphism? An answer is a phenomena in which a single substance exists in two or more crystalline structure is called polymorphism, and the substance is called polymorphous. A phenomena in which a single substance exists in two or more crystalline structure is called polymorphism and the substance is called polymorphous. अच्छा, इसमें polymorphous और polymorphism दो हैं, पर हम पहले ऐसे पढ़ते हैं. A phenomena in which single substance exists in two or more crystalline, मतलब बोला गया ऐसा कोई फिनोमेना जिसमें जो कि सिंगल सब्सटेंस है उसमें एग्जिस्ट होता है वन और उससे ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर is called as a polymorphism and the substance is called polymorphous. मतलब इसे ऐसे कहेंगे हम, a phenomena in which a single substance. Okay, understand. मतलब ऐसा फिनोमेना विच इन प्रेजेंट सिंगल सब्सटेंस
exist in one or more crystalline structure is called polymorphism, and that substance is called as polymorphous. And a substance called as a polymorphous. तो यही है what is polymorphism. तो a phenomena in which a single substance. ओके, तो ऐसा बोलेंगे हम इसे a phenomena which in present a single substance exists in one or more crystalline structure is called as polymorphism, and the substance called polymorphous. मतलब जो सिंगल सब्सटेंस है उसके अंदर एग्जिस्ट होता है वन और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और वही उस सब्सटेंस को कहते हैं पॉलीमॉर्फस. आगे है क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फोर मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल. मतलब बोला गया है कि पार्टिकल्स के टाइप बताना है ईच और फोर मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड्स. और आयोनिक सॉलिड का है कैटायन एंड एनायन, उसके पार्टिकल्स की क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि 4 है. और आयनिक सॉलिड का पार्टिकल्स है कैटायन एंड एनायन. मॉलिक्यूलर सॉलिड का है मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तीसरा है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जिसका है एटम्स जिससे कोवैलेंटली बॉन्डेड है. और 4 है मेटालिक सॉलिड जो कि मेटालिक आयंस इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. अब इसे मोबाइल लाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फ़ोन, इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन भी होगा, तो होगा ये फ़ोन नहीं, ये कैलकुलेटर है. मैं ऐसे दिखा रही थी कि फ़ोन नहीं होगा. तो वो है मोबाइल, मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन. मेटालिक आयन इन सी मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उससे हमने नहीं, जिसने दिया उसने दिया, मोबाइल नाम दे दिया उसे. तो मेटालिक सॉलिड, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे. क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड. थोड़ा ऊपर से पढ़ लूँगी, डोंट वरी. आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड जो कि आयनिक सॉलिड है कैटायन एंड एनायन. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एंड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड है जो कि एटम जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड है, वो कोवैलेंटली बॉन्डेड है एटम्स. और मेटालिक सॉलिड जो कि है हमारा मेटालिक आयन इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला गया है. ऐसे मोबाइल दैट सेम वर्ड, तो इसमें लिखा है मोबाइल तो हम भी मोबाइल लिख देते हैं. मेटालिक आयंस इज अ सी ऑफ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दैट इज. और इसको हम, तो ये 4 है इसके पार्टिकल्स और इसके टाइप्स और उसकी क्लासेस और उसके पार्टिकल्स. एक बार फिर से हम बोलेंगे. पहला आयोनिक सॉलिड, उसका पार्टिकल है कैटायन एंड एनायन. सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें है हमारा मोनोएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एंड तीसरा है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड जिसमें है एटम जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड है. और 4th है मेटालिक सॉलिड जो कि मेटालिक आयन है इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन मीन्स अ मूवेबल इलेक्ट्रॉन. मेटालिक आयन इन सी ऑफ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन. ओके, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज वैलेंस बैंड. तो इसमें वैलेंस बैंड पूछा गया, तो एनीवन व्हाट इज वैलेंस बैंड, कमेंट डाउन. तो आंसर है हमारा वैलेंस बॉन्ड
partially or completely filled band produced by bonding MOS from which electron can be promoted to conduction band. ओके, इसमें बोला है व्हाट इज वैलेंस बैंड, तो इसमें ये बोला कि वैलेंस बॉन्ड इज अ पार्शियली और completely filled band produced by bonding MO from which electron can be promoted to conduction band. मतलब valence band is a partially completely filled with the band produced by bonding MOs bonding MOs. तो ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं valence bond is a partially or completely filled band produced by bonding MO from which electrons can be promoted to conduction band. मतलब इसमें बोला गया है कि जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली कंप्लीटेड है, भी प्रोड्यूस्ड बाय बॉन्डिंग एमओस फ्रॉम जो कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट और कंडक्ट कर सकता है बैंड को। तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड इज अ पार्शियली एंड completely filled with the band produced by bonding MOs from which electron can be promoted to conduction band. That called as a valence band. Next question is, classify the following semiconductor into N or P type as doped with silicon. Okay, as arsenic doped with silicon and तो हम क्या arsenic doped with silicon and GE doped with helen. मैंने पढ़ा ही नहीं है पूरा पीरियोडिक टेबल, मैंने पढ़ा ही नहीं है सच में। The arsenic doped with silicon, that is the N type, N means N negative, and GE doped with N, that's the positive type, means a positive P type. Okay. Then what are ferromagnetic substance? The substances containing large number of unpaired electrons are strongly attracted by magnetic field. These substances are called ferromagnetic substance. मतलब the substance containing large number of unpaired electrons are strongly attracted with magnetic field. जैसे सब्सटेंस है जो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, उसे कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम ऐसे पढ़ेंगे, द सब्सटेंस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन which is strongly attracted with magnetic field. These substances are called ferromagnetic substance. Okay. Now second chapter. Solution. Explain relative lowering of vapor pressure. Okay, तो हमें explain करना है relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure if P0 and P1 are the respective vapor pressure of a pure solvent and the solution containing a non-volatile solvent, then the relative lowering of pressure vapor pressure is equal to P0 1 minus P1 upon P0 1 is equal to delta P upon P0 1, मतलब P0 1 minus P1 इसे हम डेल्टा P भी कह सकते हैं, और P0 1 इस इक्वल P0 1 को हम P0 1 ही कहेंगे।
ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। ओके, देन तो इसे हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। इफ P0 एंड P1 आर द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन containing a non-volatile solute, then the चक्कर पता मेरे घर में बना है पालक पनीर, मेरी मॉम ने बनाया है। आगे बढ़ते, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इफ P0 and P1 are the respective vapor pressure of a pure solvent and the solution containing a non-volatile solute, then the relative lowering of vapor pressure is P01 minus P1 upon P01, that is equal to delta P upon P01। और मतलब इसका ऐसा आएगा, दिखाती हूँ, इसका फॉर्मूला बता रही हूँ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P01। ऐसा आएगा ये, मतलब कि जो P01 माइनस P1 इससे हम डेल्टा P में लिख सकते हैं, और ये ऐसा से वैसा। और यही है हमारा लोअरिंग, यही है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसे हम कहेंगे एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। If P0 and P1 are the respective vapor pressure of a pure solvent and the solution containing a non-volatile solute, then the relative lowering of the vapor pressure is delta P upon P01। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। If P0 and P1 are the respective vapor pressure of solute, pure solvent, not solute, of pure solvent and the substance and the solution, substance नहीं है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। If P0 and P1 are the respective vapor pressure of a pure solvent and the solution containing a non-volatile solute, then the relative lowering of the vapor pressure is P01 minus P1 upon P01 is equal to delta P upon P01। आगे mention the physical states of solvent and solute in smoke। ओके, मतलब फिजिकल स्टेट हम लोग को करना है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का भी स्मोक में। तो सॉल्वेंट है गैस और सॉल्यूट है सॉलिड। स्मोकिंग में हमें इनको स्टेट देना है कि इसमें सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट गैस है, सॉल्यूट सॉलिड है। अंडरस्टैंड टू कमेंट डाउन कि इसको मतलब और से कैसे पढ़ सकते हैं। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन, दिस आर सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर एन एंटायर रेंज of concentration at constant temperature. These are solutions which obey Raoult's law over an entire range of concentration at constant temperature. मतलब these are the solutions which obey Raoult's law over an entire
entire range of concentration and constant temperature. इसे वो फिर से पढ़ेंगे. These are solution which obey Raoult's law over an entire range of concentrated at constant temperature. These are solutions which obey Raoult's law over an entire range of concentrated and constant temperature. 4. What is the effect of temperature on the vapor pressure of a liquid? What is the effect of temperature on the vapor pressure of a liquid? मतलब बोला है क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे जब वो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड का पूछना है ये. तो इसमें ये बोला टेम्परेचर राइजेस द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड राइजेस अंटिल इट becomes equal to the external pressure. As temperature rises, the vapor pressure of a liquid rises until it becomes equal to the external pressure. मतलब what is the effect of temperature on the vapor pressure of a liquid? As temperature rises, the vapor pressure of a liquid rises until it becomes equal to the external pressure. मतलब कि as temperature rise होता है, vapor pressure of liquid rise until becomes equal to the as temperature rises, the vapor pressure of a liquid rises until becomes equal to the vapor external pressure. It is equal to the external pressure. ओके मतलब टेम्परेचर राइज होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड राइज होता है. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है और तब तक होता है जब तक वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल ना हो जाए. तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे एज टेम्परेचर राइजेस द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड राइजेस अंटिल इट्स बिकम इक्वल to the external pressure. Okay. As temperature rises, the vapor pressure of a liquid rises until it's become equal to the vapor